And also again, based on that knowledge, I do also deliver some training sessions, which is from Arbor company. Okay, Arbor Academy is the one academy who has been, let's say, providing you this all the details, providing all the information. Okay, let me first, yeah, recording is started. No worry about it. Sorry for the cough. It's actually I'm having a bit cold, so that's why. Ignore that. So again, let us have the PPT in front of you to you'll be understanding it in much more broad aspect way. So over here, I think everyone is on board, isn't it? There is no one who is left now. So let me take you to our PPT. Introduction will be a PDF. Just a second. Yeah, here it is. It's a PDF. Okay. One request to everyone, make sure your mics are off because it should not, let's say, disturb others, isn't it? Yeah, if you have any queries, you can put on. There will not be any problem. But till the point you don't have any query, please make sure you keep that mic off. So, है ना, तो सबको समझ में भी आएगा और सबको जो हमारा मैसेज देना है, that would be easier for everyone else to grab that without any disturbance. So over here, okay, I think people are not responding to my request. Let me see who is this. Avinash, could you please mute your mic? Okay. Yeah. Thank you. Thank you for the response. Okay. Over here, as we are discussing, as we are getting along with each other, uh, this is our Arbor Academy. This Arbor Academy is specifically, or let's say, prominent in IT training institutes and placement centers. Their main role is this two major parts, where they teach, where they give the information, where they share the knowledge also, and also provide the placement for the particular role or particular, let's say, session or particular topic that you have worked on. Okay, they do provide the same information and same placement details also. Over here, we have one good opportunity that you need to pay after, okay, after the placement. Yes, obviously fees which is required, the session fees, the maintenance fees or the other fees which will be provided or which will be informed by our POC. POC over here, I'll be using this word POC. POC is nothing but point of contact. Okay, point of contact means person who is been engaged with you, person who has been let's say convinced you or who has given you a proper information regarding the topic, regarding the session, regarding all the informations, looking after you beside the session. That means other than technical session, other than technical concerns, technical over here, technical concerns will be pleased by me, Deepak Bhatlavande. Okay, I'll be concerning with this technical concerns regarding Power BI. Any query, any questions regarding technical issues with Power BI will be handled by me. Other than those regarding placement, regarding your resume, regarding your if there's any let's say gap in your career like that, so that will be handled by our team. Okay, our team. Now again, let me introduce myself over here, Deepak Bhatlavande, who is a data scientist working on different domains, not only a particular health, not only a particular production service. I have different knowledge of different domains. So over here we are specifically talking on this topic, Power BI. Power BI over here is one of the largest, or let's say one of the top ranking. Obviously, it's not only the top five, but it is on that five, it's the topmost. So this is one of a tool. This is one of a let's say data analytical tool specifically, which is used to analysis the data. Okay, which is used to analyze the data, and based on that analysis we can make our decisions. Okay, we means who we are concerned over here as a business owner, the one who is going to take decisions, the one who is going to let's say confirm whether the product should be sold out or not, whether the product should be stopped or not, whether the product should be the production of that product should be increased or not. That type of higher hierarchical decisions can be put on. Okay, like that. Okay, now
What is Arbor? Arbor Academy is an online IT course provider based in Pune, offering a wide range of courses, okay, designed to equip individuals with skills needed to thrive in your today's technologies driven world. Obviously, this is what they have the motto. Okay, this is what we have as a motto, that we emphasize on these details. What are the key features when you're joining, when you will be joining? Okay, one more thing. Is it okay to speak with English, or is it okay to go with Hindi with it? Because I would not say specifically for Marathi, because Marathi will be a bit localized language, which would be, I think, would be difficult for some of the people over here to understand. But anyhow, as a broader aspect, English and Hindi would be, I think, okay to everyone. So is it okay with Hindi or English? What do you say? Yes. Both. Both is fine. Okay, Okay with both. English. Okay. यस सर हिंदी चलो इंग्लिश बहुत दोनों ठीक आहे, ठीक मराठी. आहे, चलेगा. तो मराठी में बोलू शकतो, ऐसे कुछ नाही, आपण मराठीमध्ये बोलू शकतो. प्रॉब्लेम काय होता माहिती आहे का, पण मराठी म्हणलं की फक्त त्यांनाच कळते ना मराठी येतं. सो तेवढं थोडं असं Sorry, आहे. I cannot understand Marathi. या दैट्स व्हाई आई सेड कि Clear. स्पेसिफिक मराठी चलेगा नहीं, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश कर देंगे ताकि सबको समझ में आ जाए. ओके It is fine. ओके थैंक यू फॉर द कंसर्न. नाउ ओवर हियर की फीचर्स जो आप बार बार से एक बार कनेक्ट होते हो, या बार बार में आप चीजें, ये जो आप क्लासेस करोगे, जो आप ऐप से सीखोगे चीजों के बारे में, तो उससे हमारा एडवांटेज क्या है, व्हाई शुड वी गेट ओवर हियर. बेसिकली एक तो एडवांटेजेस जो हमने पॉइंट आउट है, कुछ किया है, बाकी बहुत सारे और भी चीजें, बट उसमें से जो मेजर चीज है, जैसे कि एक तो है कि भाई ये फ्लेक्सिबल लर्निंग मेथड है. ओके, कभी आप लर्न करो, कभी आप इसे सीखो, कभी भी इसे आप रिकॉर्ड, क्योंकि क्या होता है, रिकॉर्डेड वीडियोज होते हैं आपके पास. जो भी लाइव वीडियो अवेलेबल होता है, जहाँ पे आप एक्सेस करते हो या फिर जो अटेंड करते हो, वही वीडियो का रिकॉर्डिंग होता है. ऐसे नहीं होता है कि हाँ भाई आपने कुछ अटेंड करते समय तो कुछ और ही था, बाद में हमने रिकॉर्डेड वीडियो देखा तो पता नहीं किसका वीडियो आपको दे दिया. ऐसा नहीं होता है. जो सेशन आपने रिकॉर्ड किया है, जिस सेशन में आप बैठे थे, उसी का आपको रिकॉर्डिंग दिया जाता है, ताकि क्या होता है कि यस, जो आप डिस्कशन कर रहे होंगे या फिर जो आप बात कर रहे होंगे, ऑब्वियसली वो वही चीजें वहां पे आपको दिखेंगी. ओके, एंड अगेन रिकॉर्डेड वीडियोस में इतना इफेक्टिव, देखो भाई दुनिया पूरी ऑनलाइन हो चुकी है. जब हम वर्क फ्रॉम होम ऐसे बोलते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम बैठ के हम क्यों नहीं सीख सकते लर्निंग, इजंट इट? फॉर दैट आप कहीं भी बैठो, आप वहां से ही सीख सकते हो फ्रॉम एनी डिवाइस. मेक श्योर, एनी डिवाइस मतलब क्या, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मॉनिटर पीसी हो सकता है. सो फ्रॉम एनी डिवाइस वेयर यू हैव स्क्रीन. नाउ अगेन एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ट्राई कीजिएगा, बिकॉज वी आर लेट्स से लर्निंग सम टेक्निकल टूल्स, इजंट इट, जो हम यूज करेंगे, जो हम, जिसमें हमें प्रैक्टिस करना होगा. ये सिर्फ ऐसे नहीं कि ये बस हमने इंग्लिश का ग्रामर लिया, इंग्लिश के ग्रामर में हाँ हमने पढ़ लिया कि भाई हाँ ऑब्जेक्टिव वर्ब, उसके सेंटेंसेस बनाते समय एट्रीब्यूट्स है या भी चीज कहाँ कहाँ पे प्लेस करते हैं, फिर बस बोलना है. ऐसा नहीं है. उसे कंटिन्यूस प्रैक्टिस हमें करना है. हमें क्या करना है, उसे कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहना है. So we need to work that device, we need to work that tool on particular device. तो डिवाइस की बात जब आती है तो हमेशा ध्यान रखना, स्टार्टिंग के जो भी हम करेंगे ना, स्टार्टिंग के एक दो सेशन जो कर रहे हैं, वो ठीक है, थ्योरेटिकल करो, आई वुड नॉट माइंड विद दैट. बट मेक श्योर कि जब हम 3 दिन के बाद में, क्योंकि 3 दिन का आपको बताया होगा कि डेमो सेशन है, तो 3 दिन का डेमो सेशन के बाद में चौथे दिन जब आओगे, तो मेक श्योर कि आप आपके पास में लैपटॉप जरूर रखें. लैपटॉप स्पेसिफिकली क्यों? क्योंकि हम उसमें पावर बीआई का टूल है वो इंस्टॉल करेंगे. इंस्टॉल करने के बाद में हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे, उसमें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे. तो ये सब करते समय साथ में करोगे तो क्या होगा, आपके लिए बेटर है, बेनिफिशियल है. ओके, अदरवाइज क्या होगा कि आप वीडियो देख के बाद में करोगे, तो फिर ठीक है, वो तो आप फिर यूट्यूब से भी कर ही सकते थे ना, इजंट इट? और इवन ठीक है, वैसे भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक श्योर कि लैपटॉप हो, सिर्फ मोबाइल में ना देखें. ओके, कभी कभी क्या होता है कि आपको करने को अगर मैं बोलूंगा, तो यू शुड बी रेडी विद दैट. सो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस वर्क ऑन दिस लाइव प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट्स अभी रियल लाइफ में, जो अभी ऑन द लेट्स से हॉट स्पॉट के बेसिस में जो भी वर्क चल रहा है, जो मार्केट में जिसका अभी रिक्वायरमेंट है, उसी के बेसिस में हम यहाँ पे प्रोजेक्ट देते हैं. ऐसे नहीं कि भाई कहीं तो भी एक पुराना सामने लेके आया था डेटा, उसमें से हम वर्कआउट कर रहे हैं, नॉट लाइक दैट. वी डू वर्क ऑन लाइव. लाइव बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली जो हम वर्कआउट कर रहे हैं, जिसमें हम हमारा वर्कआउट ऑलरेडी चल रहा है, जो ट्रेंड में है, जो रिक्वायर्ड है इंडस्ट्री में, उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे. Then guided over here education, mock interviews and trainings, these are all given by our, एक गाइडेंस देने के लिए जो रिलेटेड है वो भी मैं ही करूँ, आपको हेल्प करके दे दूंगा. हमारी टीम है,
विल प्रोवाइड विद दैट डिटेल्स। फिर मॉक इंटरव्यूज भी दी जाते हैं जब अगर आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, साइड बाय साइड मॉक इंटरव्यूज चालू हो जाते हैं, है ना। तो ये साइड बाय साइड हमारा वर्क चालू होता है जिसमें कि आपको बिल्टअप पता चलता है कि अच्छा मेरा जो मैंने अभी आर्बर के थ्रू या किसी से भी हमने जो पावर बेस सीखा है वो एक्चुअल में कहाँ तक मैंने सीखा है, इजंट इट। उसे रियल वर्ल्ड में अगर मुझे कुछ क्वेश्चन अराइज या फिर कुछ सीनरीज या फिर कुछ सिनेरियोज मेरे सामने पुट फॉर्थ होते हैं तो क्या मैं उसे सॉल्व कर पाता हूँ, एम आई एबल टू रिजॉल्व दैट, बिकॉज दैट इज अवर अल्टीमेट गोल, इजंट इट। देन अगेन क्यूए, क्वेश्चन एंड आंसर्स, डिस्कशन फोरम्स वगैरह सब अवेलेबल है, हम प्रोवाइड करते हैं आपको, क्वेश्चन आंसर्स भी देते हैं, शेयर भी करते हैं। सेशन के अंदर ही लेक्चर में जब चल रहा होता है तभी मैं आपको बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट करके देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि पावर बीआई का सेशन चल रहा है, मैं आपको बोलूंगा देखो क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि पावर बीआई कंपोनेंट्स कौन से हैं उसमें पूछा जाता है, तो इंसर्ट ही आपको ध्यान रखने क्या चाहिए, दिस इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो भी लिखता है। ऐसे क्यूए आंसर क्वेश्चन फोरम चलता रहता है। देन बाई वीकली मॉक इंटरव्यूज, बाई वीकली मतलब क्या है, हर 2 हफ्ते के बाद में आपका मॉक इंटरव्यू होता, प्रोजेक्ट होने के बाद में जब आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाता है, बाई वीकली भी मतलब दूरी हो गया पकड़ लो, बट हर 2 या 1 हफ्ते में आपका मॉक इंटरव्यू, जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट करते जाओगे साइड में एक होने के बाद में साइमल्टेनियसली दूसरा प्रोजेक्ट आपको दे दिया जाता है और आपके मॉक इंटरव्यू साथ में स्टार्ट कर दिए जाते हैं, ताकि जो पहले प्रोजेक्ट में गलतियां हुई हैं वो आप दूसरे प्रोजेक्ट में करें ना, आप उसमें से बेटर आउटपुट निकाल सके, लाइक दैट वी विल बी कंटिन्यूइंग ऑन दैट। देन अनमैच अपॉर्चुनिटीज, अनलिमिटेड प्लेसमेंट ड्राइव्स होंगे आपके, ये आपको अगेन हमारे जो पीओसी आपके कॉन्टैक्ट पर्सन है उन्होंने सब डिटेल्स बताया होगा। देन मास्टरिंग एचआर राउंड्स, कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वीडियो एक्सेस, अनलिमिटेड वीडियो एक्सेस मतलब क्या है, जो भी रिकॉर्डेड वीडियो होता है आपको पूरा दिया जाता है, यू कैन एनी टाइम वॉच इट आउट। अच्छा वॉच इट आउट मतलब क्या है, उसको डाउनलोड करने के लिए फैसिलिटी नहीं है, ध्यान रखेगा, आपको आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है, कर लीजिए। वाई, इसका रीजन है पहले दिया गया था लेकिन बाद में क्या होगा कि भाई वीडियो मतलब जो डाउनलोड करने की जगह डिलीट हो गए, उसको कुछ और तरीके से यूज किया, सो वी हैव रिमूव दैट फिजिबिलिटी फॉर डाउनलोडिंग। हाँ अब आप स्क्रीन में ऑन करो, रिकॉर्ड करो, उसे सेव करो, आप यूज करो एनी हाउ, लाइक दैट वुड बी डन। रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइडेड फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, आप कहीं से भी कर सकते हो, मोबाइल में देख सकते हो, फॉर्मेट ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि बस पीसी में चलेगा, सो अवेलेबिलिटी है। देन पर्सनलाइज अटेंशन, स्मॉल ट्रेनिंग बैचेस, पर्सनलाइज अटेंशन और स्मॉल ट्रेनिंग बैचेस का मीनिंग ये है कि जैसे प्रोजेक्ट पकड़ लो, फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि हमारे बैच में अभी एग्जांपल पकड़ लो कि 30 लोग हैं, तो 30 लोग का कैसे हम प्रोजेक्ट पे और कैसे ट्रेनिंग बैचेस दिएंगे, तो उसमें दिया क्या जाता है कि पहले हम 30 लोगों को डिवाइड कर देंगे 5 5 5 के बैचेस में। वंस इट इज बीन डिवाइडेड, 6 ग्रुप में हो गए, हर एक ग्रुप का आपको एक एक सेपरेट सेपरेट प्रोजेक्ट दिया जाता है। और ग्रुप में प्रोजेक्ट देने का मतलब ये नहीं होता है कि ग्रुप में 3 लोग करेंगे और 3 लोग बाकी तो आराम से, या फिर 2 लोग आराम से बैठे रहेंगे, वो 3 लोग कर रहे हैं ना, या फिर 2 लोग कर रहे हैं 3 लोग आराम से, ऐसे नहीं होगा। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैव टू रिप्रेजेंट देयर ओन प्रोजेक्ट, इवन इफ यू आर वर्किंग विद इन योर ग्रुप, that project or the resolution of that project should not be matched, should not be, let's say let's say copy paste नहीं होना चाहिए आपके पांचों के बीच में भी, it should be different, anyhow different। सो शेयर करते समय भी क्या शेयर करना चाहिए, लॉजिक शेयर करो, आपके थॉट्स शेयर करो, आपका नॉलेज शेयर करो, मगर आपके रिपोर्ट्स शेयर मत करो, डेटाबेस आपका जो डैशबोर्ड है वो मत शेयर करो। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके ग्रुप में भी ये नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, आपने भी वही बनाया, दूसरे ने भी वही बनाया, किसको प्रायोरिटी दे, सो दैट वुड बी अ क्वेश्चन। क्योंकि आगे जाके जब बात आती है मनी की, जहाँ पे अच्छा पैकेज मिलने का अपॉर्चुनिटी आएगा, तो ऐसा थोड़ी होगा कि मेरा वहां पे फ्रेंड जा रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा। अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी, इट्स इक्वल फॉर एवरीवन। ओके, सो मेक श्योर you have that particular knowledge about yourself. Then ongoing support for job support assistance, ongoing support for job assistance मतलब क्या है, जो भी आपके काम करते करते आप जो सीख रहे हैं उसके बाद में आपको जो भी एक जॉब आया है, उस जॉब के साथ मेरे को डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, उसका आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की डिटेल चाहिए, तो ये भी आपको हम सपोर्ट करके देते हैं। सो दिस इज व्हाट पर्टिकुलरली आर्बर इज प्रोवाइडिंग टू यू। आप आर्बर में ज्वाइन करेंगे, आर्बर आपको इतने सारी चीजें फैसिलिटेट करके देगा, इतना ही नहीं है, इससे भी बहुत सारी चीजें ज्यादा करके देते हैं, बट अगेन दिस आर सम ऑफ द हायर पॉइंट्स दैट आई नीड टू मेंशन ओवर हियर। ओके, नाउ व्हाट इज पावर बीआई? अगेन पावर बीआई का क्वेश्चन अगर होगा, पावर बीआई क्यों, एक तो बेसिकली है क्या फर्स्ट ऑफ ऑल, और वही क्यों हम चीज सीख रहे हैं, इजंट इट। नाउ पावर बीआई इज अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट का ये पावर बीआई, पावर बीआई का मीनिंग ये नहीं है कि भाई पावर का मीनिंग बहुत पावरफुल लाइक दैट, इसका कंसर्न में वहां पे नहीं है, इट्स हैज अ डिफरेंट मीनिंग, देन वी विल टॉक इन आवर रेगुलर सेशन में जब आएंगे तब। बट बीआई ओवर हियर स्टैंड्स फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। सो पावर बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब क्या है, एक रोल है, और उस रोल को पावर करने के लिए हमने पावर बीआई यूज किया है, जो माइक्रोसॉफ्ट से प्रोवाइड किया गया है।
दिस इज एन इंटरैक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। इंटरैक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? जैसे कि मुझे अगर टॉप 5 है ना, फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि आपकी सिटी में टॉप 5 सेलर्स मुझे फाइंड आउट करने हैं, किसी भी प्रोडक्ट का पकड़ो, टॉप 5 सेलर्स प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है मुझे, तो हजारों सेलर्स में से लिस्ट आएंगे, उसमें से टॉप 5 मुझे चाहिए। तो टॉप 5 को जैसे आप बोलोगे टॉप 5, तो डेटा अपने आप खुद को मैनेज करेगा, इसे कहते हैं इंटरैक्टिव। What I want, my visualization is working with respect to that. My visualization is presenting me in that way. उसे कहते हैं इंटरैक्टिव। ओके, तो इस तरह से प्रोवाइड करके देता है। कैसे देता है? बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, स्लाइसर्स होता है, फिल्टरिंग करना होता है, एक स्पेसिफिक फील्ड आपको विजुअलाइजेशन को, तो उसको भी कर सकते हो। देन ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। ओके, वी कैन गो ओवर देयर लाइक दैट। कैटेगराइजेशन है जिसको हम कहते हैं, फिर उसमें हम कहते हैं कि ह्यू है, देन डिटेल्स होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो आपको एक चीज आपको हाईलाइट करने में बहुत मदद करती है, एक पर्टिकुलर। सो वी विल सी दैट आल्सो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इंटेलिजेंस? पावर बीआई तो ठीक है, समझ गया, ये तो टूल है जिसमें हम वर्कआउट करेंगे और हमें आंसर मिलेगा। बीआई क्या है? बिजनेस इंटेलिजेंस इज अ रोल। ओके, इट्स अ रोल, इट्स अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग डेटा टू हेल्प बिजनेस मेक बेटर डिसीजन। तो अच्छा डिसीजन बनाने के लिए बीआई एक रोल है, एक जो प्रोसेस फॉलो करता है कि किस तरह से हमें किसी भी एक स्टैंडर्ड प्रोसेस को, किसी भी एक प्रॉब्लम को कैसे हमें ऑब्जेक्टिव के थ्रू ना एक एक पॉइंट आउट करके कैसे चीजों को हमें एक एक करके उसे वर्कआउट करना होता है। तो दैट बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंस, हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द डेटा, एंड while understanding, Power BI helps us to get more information within the data. Once the information is taken out from Power BI, then BI what it does, it understands the report. देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सादा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने टेक्स्ट तो देखा ही होगा। टेक्स्ट मतलब क्या होता है? जो हम लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ो, मैगजीन में वगैरह आपने कहीं पेज पे, कवर पेज पे देखा होगा, ऐसे लिखा होता है कभी कभी। लेट्स से पावर बीआई में ऐसे बड़ा लिखता हूँ, पावर बीआई नहीं, इस लेट्स से मैं ऐसे लिखता हूँ, लेट्स से एप्पल, है ना, एप्पल। ये मैंने बड़े अक्षर से लिखा है। फिर छोटे अक्षर से बॉल लिखता हूँ, लाइक दिस। और फिर कैट लिखता हूँ, और फिर बाद में यहाँ पे छोटा एकदम डॉग लिखता हूँ एकदम। और फिर एप्पल के कुछ करीबी साइज का यहाँ पे मैं ई लिखता हूँ इस तरह से। फिश थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, लाइक दिस। ना, ये जो आपके सामने ग्राफ है, या फिर ये जो हमने डिटेल्स लिखे हैं ना, ये चीजें आपको देखो हमेशा आपके कहीं ना कहीं पेपर में, कहीं मैगजीन में आपने ऊपर देखा होगा कि वर्ड को ना एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया होता है, बड़े छोटे अक्षरों में और अलग अलग कलर्स में दिखाया गया होता है। ये भी हाँ एक, सर, स्क्रीन इज नॉट हाँ स्क्रीन सर, बोलिए स्क्रीन इज नॉट शोइंग। गाइस, इज माय स्क्रीन नॉट विजिबल? No, no, it's Visible. visible. Yes, sir. Sir, visible. It's visible. ओके, जिन जिन को थोड़ा सा भी मतलब, ओके ओके, थैंक यू कंफर्म। अगर स्क्रीन विजिबल नहीं है तो 2 मिनट के लिए मैं वेट करता हूँ, नो प्रॉब्लम, आप फिर से ज्वाइन करें। ओके, आई वेट फॉर दैट। आई थिंक आ गए हैं। अब यहाँ पे जो हम ये बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वर्ड क्लाउड। वर्ड, शब्दों का क्लाउड, वर्ड क्लाउड। इसका मीनिंग क्या होता है? बहुत सारे जो वर्ड्स होंगे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होंगे, हम उसको एक साथ रखेंगे, और उसमें से किसी चीज को मुझे हाईलाइट करना है, किसी चीज को एम्फसाइज करना है, किसी चीज पे मुझे और इंपॉर्टेंस हाईलाइट करना है। तो ऐसे हाईलाइट करते समय मैं क्या करूंगा? ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को हाईलाइट करेंगे, हमारे रेज्यूमे में हम हाईलाइट क्या करते हैं? हाँ भाई, मेरा रोल क्या किया था मैंने, बड़े अक्षर में लिख देंगे, है ना, बोल्ड करके, ऐसे बार बार उस पर कैसे ऐसे बोल्ड कर देंगे। तो वैसी चीज यहाँ पे कुछ क्या करते हैं वहां पे इस ग्राफ में, हम उस वर्ड को क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल साइज के बेसिस में हम उसे बड़ा करते हैं, ताकि बाकी चीजों छोटे लगेंगे, और जब भी हम इसे देखेंगे एक बार, तो एप्पल, फिश और ऐसे जो बड़े वर्ड्स है, जो साइज है बड़े, वो हमें हाईलाइट करके दिखेंगे, ताकि क्या होगा, हमारा अट्रैक्शन वहां पे जाएगा। इसी तरह के चीजों को, इसी तरह के विजुअलाइजेशन को, अगेन मुझे पता है आप लोगों को बार चार्ट, आपको पाई चार्ट सब पता है, बट दिस माइट बी वन ऑफ द चार्ट दैट यू माइट हैव
let's say heard for the first time or might have let's say seen over here, which is not much more frequent. Okay, बहुत rarely, बहुत कम लोगों की जगह पे यूज होता है. तो इस तरह के भी विजुअल्स होते हैं. वो भले ही बार चार्ट नहीं होंगे, भले ही पाई चार्ट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो आपको इंफॉर्मेशन पास ऑन करेंगे. तो इस तरह से involving collecting, analyzing and present the data in the way of how we can understand, extract, how we can get information from that particular data. Data over here means जो भी आपने आपको data in the sense of tabular format में है, जो भी आपने कहीं sales का data होगा, कहीं marketing का data होगा, कहीं health care का data होगा, कहीं से भी डेटा लिया होगा, उस डेटा में से एक्सट्रैक्ट करना इंफॉर्मेशन को, तो पावर भी आपको हेल्प करता है. नाउ सिलेबस वाइज आप देखोगे तो हम क्या क्या करने वाले हैं, हम इसमें से क्या ही चीज हम पढ़ेंगे और क्या क्या हमें बेसिकली इसमें से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा पावर बीआई की सेशन से. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि पावर बीआई है क्या इन थ्योरेटिकल पार्ट. आप बोलोगे अच्छा ये तो यही पे हमें समझ में आएगा पावर बीआई है क्या. आई नो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आ चुका है पावर बीआई का, बट पावर बीआई सिर्फ उतना ही नहीं है ना. पावर बीआई सिर्फ डेफिनेशन के बेसिस में ही नहीं होता है. पावर बीआई के अंदर में बहुत सारे बैकग्राउंड